Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is an International Islamic University School Sahiwal online lectures, and this lecture is for grade 4 for the subject of English. And in this lecture we are going to start our unit number 1 of English, and the topic we will cover in this lecture is parts of speech. Before beginning the lesson, just listen to the instructions to listen to this lesson. And the instructions are to keep your book and your complete stationery with you. Listen to the lecture very attentively and carefully and follow all the directions teacher gave you. You should mark date and day on the top of the page where you do your classwork today, okay? And if you have any difficulty and any question in your mind while listening to this lecture or while doing your homework, you can send a message through WhatsApp to school number. Okay, so let's begin our today's lecture, which is parts of speech. Do you know what is a part of speech? Students, हर एक लैंग्वेज के जो सेंटेंसेस होते हैं, जो बातचीत होती है, उसके कुछ मेजर पार्ट्स होते हैं. एंड टुडे वी विल डिस्कस सम मेजर पार्ट्स ऑफ स्पीच फ्रॉम इंग्लिश विच आर नाउन, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स. वैसे तो आपको ऑलरेडी पता है कि इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो 8 हैं, बट इन दिस लेक्चर वी विल जस्ट discuss noun, verb and adjective. So let's begin. What is a noun? I hope you all know already that what is a noun. A noun is a word that represents a person, place, thing or any idea. कोई भी ऐसा word जो किसी person को, place को, ऑब्जेक्ट को या किसी आइडिया को या किसी इमोशन या फीलिंग को एक्सप्रेस करे, ऐसे वर्ड को हम नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डॉग, सिटी, हैप्पीनेस, पाकिस्तान, सारा, मैन, एट्सेट्रा. नाउन हेल्प्स अस नेम एवरीथिंग इन आवर वर्ल्ड. हमारे इर्द गिर्द जितने पर्सन्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जो कुछ भी है, उन सब को इंडिकेट करने के लिए, उन सबको पॉइंट करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो वर्ड्स नाउन होते हैं. ओके, मेजरली नाउन के जो हैं वो 2 टाइप्स होती हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन्स वो होते हैं जो किसी पर्सन, प्लेस या थिंग का नेम होते हैं. नेमिंग वर्ड्स को हम हमेशा प्रॉपर नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आवर नाउन इज बॉय, बॉय. But if we call his name, it will become a proper noun. Boy is a common noun, but if we say Ahmad, it becomes a proper noun. For example, we say book, book. It is a common noun. But if we call the book by its name, for example, if we call a book, for example, if we call The Alchemist. This is the name of a book, The Alchemist. If we call the name of a book, it becomes proper noun. The examples given here are Karachi, Pakistan, Ali. ये सब क्या हैं? कोई किसी प्लेस का नेम है, कोई किसी पर्सन का नेम है. तो जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं, और जितने भी जनरल टर्म्स होती हैं टू इंडिकेट अ पर्सन, प्लेस और थिंग, उन जनरल वर्ड्स को हम कॉमन नाउन कहते हैं. ऑलराइट, फाइंड द कॉमन नाउन्स. अब यहाँ पे एक पैराग्राफ गिवन है और यहाँ से हमने मिल के कॉमन नाउन्स को फाइंड आउट करना है. और अभी मैं आपको अगेन बता दूँ कि कॉमन नाउन्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या किसी आइडिया या फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं. रीड इट विद मी. द वाटर वॉज ब्राउन एंड स्वेलिंग हायर देन ही हैड एवर seen it. Enormous branches were being carried along like boats. Bilal gazed as old tires and shopping carts and what looked like a whole tree rushing by. So in this paragraph, I have found many common nouns. Have you found? Let's rewind it. The water. Water is a common noun here. Was brown and swelling higher than he had ever seen it. Enormous branches. Branches. Branches is another common noun.
were being carried along like boats. Boats is again a common noun. Bilal gazed as old tires. Tires. Tires is another common noun. And shopping cart. Cart is another common noun. What looked like a whole tree. Tree. Tree is a common noun. So we have found common nouns here. It means that we have understood what is a common noun. Let's move forward. And the next part of speech is verb. Grade 4 students, all of you already know what is a verb. A verb is an action word. A word that represents any action. किसी भी काम को बताने वाले वर्ड को हम क्या कहते हैं? Verb कहते हैं. Verbs are the doing words in the sentences. For example, run, jump, swim, be, is, are, have. For example, she runs quickly. ग्रेड 4 स्टूडेंट्स, मैं समझ रही हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि रन, जंप, स्विम ये तो एक्शंस हैं. बी, इज़, एम, हैव ये कैसे वर्ब्स हैं? तो ये ऐसे वर्ब्स हैं जो ऐसे सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं जहाँ पे कोई स्पेसिफिकली एक्शन वर्ड नहीं होता. वहाँ पे इज़, आर, एम, हैज़, हैव वहाँ पे वर्ब की तरह एक्ट कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस है शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल. तो इस सेंटेंस में कोई भी एक्शन वर्ड नहीं है, तो यहाँ पे हम वर्ब किसे कहेंगे? यहाँ हम इज़ को वर्ब कहेंगे. बट ओवरऑल you can memorize it that every action words or state is called a verb. Now it's time to discuss about the adjectives. What is an adjective? An adjective is a word that describes a noun. Adjective ऐसा word होता है जो एक noun के बारे में बताता है कि वो noun कैसा है. और generally जो adjectives होते हैं वो क्या क्या describe कर सकते हैं? वो साइज डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो क्वालिटी डिस्क्राइब कर सकते हैं और वो कलर डिस्क्राइब कर सकते हैं. किसी नाउन की यही क्वालिटीज़ हो सकती हैं ऑफ कोर्स. फॉर एग्जांपल, क्वालिटीज़ क्या होंगी? हैप्पी, सैड, ब्यूटीफुल, अगली, एट्सेट्रा. साइज़ क्या होगा? बिग, स्मॉल, ह्यूज, लिटिल, एट्सेट्रा. और कलर कोई भी कलर हो सकता है. अब यहाँ पे एग्जांपल गिवन है द बिग हाउस. अब यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है? Big. That's great. Now let's find out some adjectives in our story. जो हमारा यूनिट नंबर 1 है वो एक स्टोरी है बिलाल की रशिंग रिवर के बारे में. आपने उस स्टोरी को रीड आउट करना है और उस स्टोरी में से एडजेक्टिव्स को फाइंड आउट करना है. और उसके बाद आपका टास्क क्या है? आपने उन एडजेक्टिव्स को या उनमें से अ फ्यू एडजेक्टिव्स को आपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है. ऑलराइट, और यही आपका आज होमवर्क होगा. इफ़ वी सी हियर आर सम स्ट्रक्चर्स गिवन. फर्स्ट वाला देखें, यहाँ पे एक वर्ड गिवन है डिसाइसिव. डिसाइसिव डिसाइसिव एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या है? गुड एट मेकिंग डिसीजंस. और ये किसकी करेक्टरिस्टिक हो सकती है? ऑब्वियसली ये किसी ह्यूमन की करेक्टरिस्टिक हो सकती है ना. कोई थिंग तो डिसाइसिव नहीं हो सकती ना, कोई पर्सन ही डिसाइसिव हो सकता है. सो कैरेक्टर यहाँ क्या होगा? बॉय, ही, अहमद, कोई भी कैरेक्टर, और उसकी क्वालिटी क्या होगी? डिसाइसिव. तो हम अगर इसका सेंटेंस बनाना चाहें तो हम क्या बनाएंगे? हम कहेंगे अहमद इज़ अहमद हैज़ कम थ्रू अ डिसाइसिव सिचुएशन. ऑलराइट. सो इसी तरह नेक्स्ट 2 सिचुएशंस भी हैं, आप उन्हें देखें और उसके बारे में सेंटेंस बनाएं. पॉज द वीडियो, रीड द नेक्स्ट 2 सिचुएशंस एंड मेक द सेंटेंसेस इन योर माइंड. लेट्स मूव नेक्स्ट. हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव्स गिवन कि किस कैटेगरी के जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनके लिए हम क्या वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, वी कैन यूज़ फॉर द क्वांटिटी ऑफ सम नाउन, what words can we use? We can use few, many. For the quality of any noun we can use any word like powerful,
rushing, scary, beautiful, memorable, etc. For the size of the noun, we can use huge, wide, tall, small, etc. For the shape of the noun, we can use the words square, round, triangle, or any shape. For the color of the noun, we can use any color: blue, green, red, yellow, orange, etc. For the origin, where does it belong, कि वो जो noun है वो कहाँ से belong करता है, ये भी adjective हो सकता है. For example, he is an Asian, he is a Pakistani. तो इस तरह के words भी क्या होंगे, adjectives ही count होंगे. I suggest you to rewind this part of the lecture and इस slide को again आप सुने और understand करें. All right. सो अभी हमने एक एक्सरसाइज डिस्कस की थी कि आपने बिलाल की स्टोरी को रीड आउट करना है और वहाँ से आपने एडजेक्टिव्स को फाइंड आउट करना है. सो इस स्लाइड में आपको टीचर ने खुद ही कुछ एडजेक्टिव्स फाइंड आउट करके बता दिए हैं. फ्रॉम द स्टोरी, द एडजेक्टिव्स अबाउट द रिवर आर वाइड, रशिंग. कैन यू फाइंड सम मोर? Yes, in this story, some more adjectives are described about the river: that deep, swift, murky, sparkling, peaceful, etc. Now it's time to note your diaries down. अपनी diaries open करें और आज की date mention करें. And if you have already mentioned today's date, then that's fine. Just note your English diary down. Pick your pencil, open your diary and write the diary down. और diary आपकी क्या है कि आपने जो एडजेक्टिव्स फाइंड आउट किए हैं बिलाल की स्टोरी से, उन एडजेक्टिव्स में से 3 एडजेक्टिव्स की आपने सेंटेंसेस बनाने हैं और नोटबुक में लिखने हैं. सो नोट योर डायरीज डाउन एंड द डायरी इज मेक द सेंटेंसेस ऑफ 3 एडजेक्टिव्स फ्रॉम द स्टोरी. मेक योर ओन सेंटेंसेस फॉर द एडजेक्टिव्स you found in the story. Have you written your diary? That's good. Okay, students, good luck. Allah Hafiz.